قرآن کے مقدس کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جو زمین پر اپنے آپ کو باپ کہنا پسند کرتے ہیں، یعنی جو خادم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باپ کہا جائے، ہے نا؟ اور ایک کلیسیا ہے وہ تو فادر جی کہتے ہیں، اور فادر کا کیا مطلب ہے؟ باپ، ہے نا؟ تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تم زمین پر کسی کو باپ نہ کہو۔ آج ہم سیکھیں گے خدا کے مقدس کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی ہم پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ جن کے پاس مقدس کلام ہے ہم نکالیں اس حوالے کو۔ اس وقت یسوع نے بھیڑ اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کی کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ سب کام لوگوں سے دکھانے کو کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح، لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خدا کے مقدس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھا ہے کہ یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کی ہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے منہ کی باتوں کو جب ہم نے سننا ہے تو اس کو باغور سننا ہے۔ یعنی خدا کا کلام فرماتا ہے یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہی ہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے تو موسیٰ کی گدی پر ہیں، لیکن کام کیسے کرتے ہیں یہ ہم نے غور کرنا لکھا ہے۔ پر جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان جیسے کام نہ کرو۔ بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کیسے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ اور آگے لکھا ہے وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے کلام کی باتوں کو فرماتے ہیں لیکن مانتے نہیں، حکم دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے لیکن خود نہیں کرتے۔ تو خدا کا کلام فرماتا ہے ہم نے ان جیسے کام نہیں کرنے۔ رات کو بھی ایک بھائی سے ملی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو چرچ جانا چھوڑ دیا، کیونکہ ایسی تعلیم، ایسا خدا کا کلام جو سچا ہے پر حق ہے مجھے کہیں سے بھی نہیں، کوئی سناتا ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی مشنوں کی بات، ہر کوئی منسٹری کی بات، ہر کوئی اپنے گھر کی بات، ہر کوئی اپنے طور طریقے سے چل رہا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ ہر ایک نے اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہے۔ اگر آپ نے چرچ چھوڑ دیا ہے تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ آپ کا ہے، ان کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ انہوں نے اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنے اعمالوں کا۔
तो खुदा का कलाम फरमाता है वो कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। लिखा वो अपने तवीज़ बड़े बनाते हैं और पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत में आला दर्जे की कुर्सियाँ, यानी वो अपने आप को कुछ समझते हैं कि हम क्या हैं, बड़े लोग हैं, हम आला मर्तबे के हैं, हमारे पास दौलत है या हमारे पास रुतबा है, तो उसका क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है वो अपने आप को बाप ही कहना पसंद करते। वो लोगों से कहते हैं हमें बाप कहो। एक दिन 2 बच्चों से मिली, वो खिदमत के लिए निकले हुए थे, तो वो कह रहे थे कि हमारा बाप जो है वो दुआ कर रहा है और हम खिदमत कर रहे हैं। हम गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं और हमारा बाप और हमारी माँ जो है वो बस दुआ करते हैं। मैंने कहा आपके माँ बाप कौन है? तो उन्होंने कहा हमारा खादम और हमारी खातमा। तो मैंने उनको बताया कि खुदा के कलाम में ऐसा लिखा। उन्होंने कहा हमने हवाला ही पहली दफ़ा सुना कि ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो। पौलुस रसूल कहता है कि ये जो तुम्हारे जिस्मानी बाप हैं, यानी इनका तो खुदा ने हुक्म दिया है। पर उसकी किताब में पढ़े तो लिखा है कि तू अपने बाप की और माँ की क्या करना, इज्जत करना। तो ये जिस्मानी बाप हमारे खुदा ने हमें दिए, लेकिन जो रुतबा रखते हैं, जो ओहदे रखते हैं, जो सदर नशीनी चाहते हैं, जो कुर्सियाँ चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, हमें बाप भी कहा जाए, क्योंकि बाप का एक बहुत बड़ा रुतबा है ना। बाप को खुदा ने बहुत सी बरकत दी है, बाप को खुदा ने मुख्तार बनाया है, इसलिए वो कहते हैं कि हमें बाप समझा जाए। लेकिन बाप बनना मुश्किल है ना। कहते तो हैं कि हमें बाप कहा जाए, तो बाप की क्या जिम्मेदारी, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं बाप की। यीशु मसीह जब भी दुआ करते हैं तो अपने बाप के सामने क्या करते हैं, मिन्नत करते, दरखास्त करते, अपने बाप की परमिशन लेते, अपने बाप को बताते और फिर आगे काम करते। ऐ बाप, अगर तेरी मर्जी है तो ऐसा हो, ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। और खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा यीशु ने अपने बाप के ताबे रहकर, लिखा है इतना ताबेदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवाह है। तो बहुत सी मैंने मिशनें ऐसी देखी हैं, बहुत से ऐसे पादरी जो कहते हैं कि हमने अपने शागिर्दों को बताया कि आपने हमें क्या कहना है, बाप कहना है, क्योंकि वो अपना रुतबा चाहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम इस बात से क्या करता है, मना करता है। खुदा का कलाम इस बात से मना करता है कि तूने जमीन पर किसी को हादी नहीं कहना, किसी को बाप नहीं कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही बाप है, वो कहाँ है, आसमान पर। किसी के सामने झुकना नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के सामने झुकना है। वही हमारा खुदा है और उसी के सामने हमने झुकना है। और बहुत सारे लोग इस बात से ठोकर खाते हैं कि ये अपने आप को बाप कहते हैं। और कुरान के कलाम में लिखा है कि उस शख्स पर अफसोस जिसके बाइस ठोकर लगे, उस शख्स के गले में बहुत बड़ा एक पत्थर डालकर उसको दरिया में फेंक दे ताकि वो ऊपर ही ना आए। इतनी बड़ी उसको सजा है, जिसके बाइस ईमानदारों को क्या लगे, ठोकर लगे। ठोकर का बाइस है वो शख्स, जो शख्स ठोकर का बाइस है, खुदा का कलाम फरमाता है उसके गले में एक बहुत बड़ा पत्थर डालो और उसको कहाँ फेंक दो, समंदर में, ताकि वो ऊपर भी ना आ सके, उस पानी में ही गर्क हो जाए। इतनी बड़ी सजा है उसके लिए। जो ईमानदारों के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं, चाहे वो खादम हो। बहुत से लोग कहते हैं फलां खादम ऐसे करती हैं, उसने भी तो बपतिस्मा लिया, वो भी ऐसे कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो ठोकर का बाइस बन रहे हैं, लोगों के लिए ठोकर का बाइस बन रहे हैं, खुदा को लानिया जलील कर रहे हैं। तो खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। खुदा हर इंसान से मोहब्बत करता है। खुदा के कलाम में लिखा है जब तक एक एक नुक्ता, एक एक शोशा पूरा ना हो जाए, मेरा आना जल्द नहीं है। मैं जल्दी नहीं आऊँगा जब तक मेरा कलाम पूरा ना हो जाए। तो खुदा के कलाम की बातें पूरी हो रही हैं। लोग जमीन पर अपना रहने सहने का तरीका बिगाड़ चुके हैं।
खराब हो जाती है, वो बुरी सोबतों में चले जाते हैं क्योंकि उनके सर पर डर नहीं होता, उनके दिल में खौफ नहीं होता। लेकिन जिनके दिल में डर खौफ होता है वो जिस्मानी बाप की भी इज्जत करेंगे और अपने रूहानी बाप की कि नहीं, मेरा बाप ये बात जान लेगा तो मुझे डांट पड़ेगी, मुझे मार पड़ेगी और मेरा बाप हो सकता है मुझे घर से भी निकाल। लेकिन खुदा के कलाम लिखा है हमारा बाप रहीम खुदा है। हमारे बाप के पास बहुत से मकान है। वो कहता है मैं जाता हूँ, बेटा कहता है मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, जगह तैयार करता हूँ। मेरे बाप के पास बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हमारा बाप हमारे लिए बहुत सी चीजें तैयार करके बैठा हुआ है और उसी को बाप मानना है, उसी की ताबेदारी करनी है। जब ताबेदारी में रहेंगे, फरमाबरदारी में रहेंगे तो वो सारी बरकतें हमें मिलेंगी। खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि मैं तुझे बहुत सी बरकतें दूंगा। आगे उनके साथ उनके बच्चों से वादा किया, यकूब से वादा किया, यूसुफ से वादा किया, नस्ल दर नस्ल खुदा ने उनको बरकतें दी। क्यों? क्योंकि वो अपने बाप की क्या करते थे, फरमाबरदार, ताबेदारी अपने जिस्मानी बाप की भी करते थे और आसमानी बाप की भी करते थे। इसलिए सिर्फ हमारा बाप कौन है, आसमान पर है। मिशनों वाले बाप की हमने ताबेदारी नहीं करनी, या बस फादर डे पर फादर की इज्जत नहीं करनी। हमें हर रोज हमारे आसमानी बाप की इज्जत और ताबेदारी में रहना है। और खुदा ने जब हमें दुआ सिखाई तो सबसे पहले कहा कैसे दुआ करनी है, ऐ हमारे बाप, यानी अपने बाप को अव्वल दर्जा दिया। और बहुत से लोग अपने उन बाप को, शायद बाप की इज्जत ना करें लेकिन अपने मिशनों वाले बाप की बहुत ज्यादा इज्जत करते, खड़े हो जाते हैं तज़ीम में, है ना, खड़े हो जाते हैं उनकी तज़ीम में कि हमारा बाप आदर जी है। शायद बाप की इतनी इज्जत ना हो, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुमने जमीन पर किसी को भी फादर नहीं कहना, बाप नहीं कहना, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप एक ही है। तो जरूरी है उस बाप की दिलो जान से इज्जत, तज़ीम, ताबेदारी, फरमाबरदारी, डर और खौफ उसी का मानना है। जब उस बाप का डर खौफ हमारे अंदर होगा, तो जब डर अंदर होगा तो फिर हमारी कमियां जाती रहेंगी, हमारी खताएं जाती रहेंगी, हमारे गुनाह जाते रहेंगे कि हम डर खौफ के साथ जिंदगी गुजारेंगे कि हमारा बाप ऊपर देख रहा है, हमारा बाप हमें देख रहा है, हमारा बाप हमें संभाले हुए है, हमारा बाप हमें मुहैया कर सकता है। एक मैं बात पढ़ी थी कि जो बांटता है वो डांटता है। अगर बाप बांटता है ना बच्चों को पैसे, तो उसका हक है वो डांटता भी है। अगर माँ बच्चों को खाना बना कर दे रही है तो वो बच्चों को डांटती, जाओ पहले हाथ धो करो, जाओ पहले ऐसे करो, नहीं तो मैं मारूंगी, मैं डांटूंगी तुम्हें, है ना। जो बांटता है वो क्या करता है, डांटता है। इसलिए हमारा आसमानी बाप हमें बरकतें बांटता है, नेमतें बांटता है, शिफाएं देता है। तो कभी कभी वो हमें डांटता है, कभी कभी हमें सलाह देता है, कभी कभी हमें मजबूत करता है, हौसला देता है, खौफ ना खा क्योंकि मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूँ। कभी कभी कहता है तसल्ली का चश्मा मैं हूँ, फिर कैसे भी हालात हूँ, कहता था मौत के साया की वादी से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदा का बंदा हमें दलेर मजबूत बनाता है। और खुदा का कलाम जो दो धारी तलवार है, ये जब हम पर चलता है तो हमें महसूस होता है हमें ये कमी थी, आज मुझ पर तलवार चली है। मैंने अपने बाप को कम तरजीह दी, आसमानी बाप को कम तरजीह दी और जमीन वाले बाप को ज्यादा दी। उन ओहदे वाले बाप की बात कर रही हूँ, ये जिस्मानी बाप तो खुदा ने खुद दिए हैं, इनका हुक्म भी दिया है इनकी इज्जत करनी है। लेकिन जो मिशनों वाले बाप हैं उनको हमने बाप
गॉड से हमने सीख लिया। बहुत सारे लोग अभी भी उनको फादर जी कहते हैं, उनकी इज्जत ताज़ीम करते हैं, इज्जत करें, लेकिन बाप उनको ना क्यों मेरे बाप नहीं, हमारा एक ही बाप है, वो कहाँ है? आसमान पर। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है कि बहुत से वो काम दूसरों को बताते हैं करने के लिए और खुद उंगली भी हिलाना नहीं चाहते, बस बैठे रहते, फजूल कामों में टाइम गुजारते रहते, लेकिन कोई नजात का काम नहीं, कोई हमेशा की जिंदगी का काम नहीं, कोई लोगों को तौबा का पैगाम नहीं, बपतिस्मे का पैगाम नहीं, हमेशा की जिंदगी का पैगाम नहीं, और वो अपनी सैलरी लेते हैं और खामोश अपने कमरों में बैठे दूसरों को बताते हैं हमारे पास ये होता है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है वो क्या करते हैं, अपने पेशाब के किनारे चौड़े रखते हैं। बहुत से लोग समझ जाते इस बात ना कि वो कौन लोग हैं, और लिखा है वो बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। वो कहती है कि हमें सलाम सलाम जी कहा जाए, है ना, और हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाए। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है इज्जत और दौलत कहाँ से है? खुदा की तरफ से। जब खुदा इज्जत देता है तो उस इज्जत को कोई पमाल नहीं कर सकता। दाऊद बेशक चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था, उसके भाई दूसरे सूरमा थे, खूबसूरत थे, ताकतवर थे, लेकिन वो एक छोटा बच्चा था, चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन खुदा ने उन सबको रद्द कर दिया। और जब दाऊद आया तो खुदा ने सामने से कहा इसको वसा कर, क्योंकि यही मेरा मंसूब है। खुदा हमारी शक्ल और सूरत को नहीं देखता, हमारी खूबसूरती को नहीं देखता, हमारे दिलों को देखता है, कि हम हमारी वफादारी को देखता है, हमारे चाल चलन को देखता है। और दाऊद खुदा से मोहब्बत बचपन ही से मोहब्बत करता है। जैसे सैमुएल बचपन ही से खुदा की आवाज़ सुनता था, उसको खुदा आवाज़ देता, और वो ये नहीं कि पड़ा रहता खैर कोई बात नहीं, ऐसे कहा उसने नहीं, वो भाग कर एली के पास गया, उसने कहा आका आपने मुझे आवाज़ दी, उसने कहा नहीं सो जाओ जाकर। दूसरी बार फिर उसको आवाज़ आई, फिर भाग कर गया है, और फिर एली को पता चल गया कि खुदा इससे बात करना चाहिए। फिर उसको आवाज़ दी सैमुएल सैमुएल, तो इससे पहले जब वो एली के पास जाता है, एली कहता है कि अब जब तुझे आवाज़ आए तो तूने कहना खुदा बता तेरा बंदा सुनता है। तो जब तीसरी बार आवाज़ है उसने कहा खुदा तेरा बंदा सुनता है, फरमा। तो खुदा ने एली के घराने की बाबत उससे बात की। तो सुबह उठकर एली उससे पूछते हाँ खुदा तुझसे हम कलाम हुआ, बता क्या तुझसे बात की? तो वो डर गया, वो कहने लगा मैं नहीं बताऊंगा, खुदा ने मुझे इसके बेटों के बारे में बात की है। कितनी ताबेदारी, फरमाबरदारी, बचपन ही से खुदा से मोहब्बत। तो फिर खुदा उन बच्चों को और उन नौजवानों को, उन बेटों को, बेटियों को बरकतें देता है जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। खुदा को अपने सूर में बनाता है बच्चों को, खुदा उनको तख्त पर बैठाएगा, उसका वादा है। तब जब बाप की क्या करेंगे? आवाज़ सुनेंगे। आदम जब तक खुदा की आवाज़ सुनता रहा, खुदा में कायम रहा। एक वक्त आया कि हवा ने अपनी इसकी बात मानी तो छिप गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसने क्या की? नाफरमानी। बहुत दफा मैं बताती हूँ कि हुक्म खुदा ने किसको दिया था? भला आदम को दिया था, हवा को नहीं दिया था। हवा ने जब खाया तो उसे कुछ नहीं हुआ, ना तो उसकी आंखें खुली, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है जब आदम ने फल खाया तो दोनों की आंखें खुल गई, क्योंकि आदम को हुक्म दिया। आदम बहुत बेटा, आदम पहले बनाया गया था, आदम को खुदा मोहब्बत करता था, आदम को खुदा ने मुख्तार बनाया था, और हुक्म भी किसको दिया था? आदम को। तो जब खुदा का हुक्म हम नहीं मानते, तोड़ देते हैं, तो फिर हमारी बरकतें रुक जाती। इतनी बड़ी बरकत से वो कहाँ चला गया? बाहर चला गया। आए हमारे आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करें, उसकी मर्जी को जाने, उस बाप को हमेशा दिलो जान से इज्जत तज़ीम डर खौफ के साथ मानते रहें, और ऐसे लोगों से खबरदार रहें जो आला दर्जे की कुर्सियाँ
عزت تعظیم چاہتے ہیں، باپ کہلانا پسند کرتے ہیں، ہاتھی کہنا پسند کرتے ہیں، کہلوانا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم نے کیسے رہنا ہے؟ خبردار ہے۔ ہم نے زمین پر کسی کو باپ نہیں کہنا، ہمارا آسمانی باپ ہے وہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، اور ہم کیا ہیں؟ زمین پر ہیں۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے میں تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہوں تاکہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے۔ شکر گزاری کرتے ہیں کہ اگر ہم اس میں قائم ہیں، ہم اس کو باپ مانتے ہیں، اسی کی عزت تعظیم کرتے ہیں، تو خدا کی شکر گزاری۔ اور کبھی بھی ایماندار ہوتے ہوئے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، کسی کی بھی زندگی میں ٹھوکر کا باعث نہ بنے، تاکہ ہمیں سزا نہیں بلکہ برکت ملے اور ہم آسمان کی بادشاہت کے وارث بنے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔